A very good afternoon to the students of UKG. Today, welcome to the EVS classes. Dear students, I presume that you are very well and good with your family members in this COVID-19. And please see that you are remaining safe, and please do not step out from your house until and unless it is very necessary. But one thing what you can do is study hard, and please listen to your parents. Okay. So, as in the previous classes, we have done the essay on Independence Day, which we are going to celebrate on Saturday. And I wish everybody a happy Independence Day as well as happy Janmashtami for tomorrow. So, with this consideration, we may start the class today. Today, we are ending up the chapter of first term, that is your chapter 7. So, student, we are very much aware that our school is holding an important place in our life, and we know you are missing your school, and we are missing you too also. So, the one thing which brings charms on our life is your behavior and your activities, which always help us to do and brings challenges forward us to see that we are true mentors to correct your mistake. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल से मिलती हैं और हमें आपके द्वारा इसको करने का मौका मिलता है. तो विद्यालय कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये अब हम समझते हैं, आप भी ये समझते होंगे, है कि नहीं. पेरेंट्स भी ये बात समझ रहे होंगे कि विद्यालय लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है. लोगों बच्चों को चैनलाइज करने के लिए विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, विद्यालय में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, जो कि आपके बच्चे को एक शेप देता है, आकार देता है, सोचना वर्सटाइल बनाता है. ये सारा चीज़ हम कहाँ करते हैं, तो विद्यालय में, और अपने कोऑपरेशन से, अपने टीचर्स के कोऑपरेशन के, अपने अदर स्टाफ मेंबर्स से, अपने प्रिंसिपल, अपने डायरेक्टर के मदद से ये सारे चीज़ हम लोग कर पाते हैं. तो आपके चैप्टर 7 में इट हैज़ बीन गिवन रिगार्डिंग दिस फैक्ट्स ओनली दैट व्हाट इज द स्कूल. सो एज यू नो दैट योर स्कूल इज रिप्रेजेंटिंग द आर्यन स्कूल ऑफ साइंस, बट हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील अबाउट द विवेकानंद पब्लिक स्कूल. ओके. So it is a school which has been displayed in your book. So here they are saying that school is meant for what? The schools are meant for learning different habits, learning different subjects. Like for an example, we learn drawing, we learn singing, we learn dancing. Besides this, we learn other subjects like your maths, your history, your geography. Then your English grammar, your Hindi grammar. So these are the different subjects. So what is the common process of learning everything? The common process is as usual reading, writing, and then learning. Okay, so whatever you read, you write it down. Yes or no? Exactly. And whatever you write, you learn it out. Isn't it? So this is how we learn everything. Okay, so in school what do? We learn reading, we learn writing, we learn to do drawing. We love to share the things by sharing our tiffin with our friends, isn't it? Then we love to play with our classmates, isn't it? And we love to do the assembly while singing and offering a thankful prayer to our Almighty God. Okay. And then what does our teachers do for us? They do number of things, but the most important thing what they do for us, they teach us the good manners, isn't it? It is very important to be punctual, to listen to your parents, to be obedient, to be disciplined, to be understanding the time, and to understand your social being. These are the good habits which has been taught by our teachers. Okay. Besides this, हम लोग अपने स्कूल में what do we do, and what are the different places in our school, or the different rooms in our school, and what are these rooms made for? Okay, so the first and the initial room what we enter in our office is our principal room.
Okay, so here the authority has been here who supervises the work of all the persons, जिसका काम, इनका काम है कि सारे लोगों का काम देखना, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है या फिर टीचिंग स्टाफ है, और हमारे बच्चों सही ढंग से इस चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं या नहीं, ये सारे किन का काम है? प्रिंसिपल का काम है, isn't it? अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, तो क्या है हमारा क्लासरूम। हम लोग जानते हैं विभिन्न स्टोरेज में हमारा क्लासरूम है ना, फर्स्ट स्टोर, सेकेंड स्टोर, या फिर आपका बेसमेंट में भी क्लासेस चलती हैं। तो ये डिफरेंट क्लासरूम है। हम अपने क्लासरूम में 6 से 7 घंटा बिताते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, isn't it? और अपने क्लासेस को नीट एंड टाइडी रखते हैं ताकि दोबारा फिर हम सुबह आए तो हमें ये नीट एंड क्लीन मिले। तो आप लोग सब जिम्मेवारी लेते हैं अपने क्लासरूम को साफ रखने के लिए, isn't it? और आपके क्लास टीचर आपको मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे आपको मिलजुल के काम करना है। यस और नो? यस। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट? इज योर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होती है? ऑब्वियसली लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह की स्टोरी बुक्स, है ना, जो कि बुक्स कोर्स से रिलेटेड नहीं है, कुछ लीडर्स की आत्मकथा रहती है वो पढ़ेंगे, या फिर कुछ हमारा डिस्कवरीज बुक्स होती है वो सब पढ़ेंगे ना। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ मिलती है? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हम कैसे जाते हैं? हम लोग शांति बनाए रखे जाते हैं क्यू में, और लाइब्रेरियन से बुक्स लेते हैं और फिर उनको वापस कर देते हैं। अगर हमें ले जाना है बुक तो लाइब्रेरी कार्ड हम इशू करवाते हैं, उस कार्ड में हम बुक्स को चढ़वा लेते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन डेज 4 दिन 5 दिन बाद उस बुक को हम लोग वापस कर देते हैं लाइब्रेरियन को। यस। तो यहाँ पे आपने देखा है बुक में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक लाइब्रेरियन अपने काम कर रहे हैं, तो इन्हीं से हम परमिशन लेके बुक ले जाते हैं, फिर बुक को उसी प्रकार वापस कर देते हैं विदाउट मिस हैंडलिंग द बुक। ओके। चौथा चीज़ क्या है हमारे में? देन वी आर हैविंग अ सिक रूम। आइंदा बच्चा हमेशा बीमार रहता है, कभी उनको पीठ में दर्द होती है, कभी सिर में दर्द होती है, कभी वॉमिटिंग होता है, तो सो फॉर दिस रीज़न वी नीड वन सिक रूम फॉर द स्टूडेंट्स, इज़न्ट इट? तो ये सिक रूम क्या होता है? सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ अ डे में अगर हम अच्छे नहीं रहते, वी आर नॉट हैविंग अ गुड फीलिंग, तो हम घर नहीं जाएंगे, हमें ये भी है कि आई मिस द क्लासेस, तो 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर हम दोबारा अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से सिक रूम बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल में। उसके बाद हमारा म्यूज़िक रूम। अब यहाँ पे मनचाही बात होती है, म्यूज़िक रूम में हम एंटरटेन करते हैं, अपने म्यूज़िक टीचर्स के साथ घूमते हैं, उनसे नई गाने सीखते हैं। जैसे कि आपके म्यूज़िक टीचर कौन है? सुभाष सर, है ना, आपको नई गाने सिखाते हैं। ही टीचर्स यू इंग्लिश सॉन्ग ऑल्सो, हिंदी सॉन्ग ऑल्सो, पेट्रियाटिक सॉन्ग ऑल्सो, इज़न्ट इट? सो ये सारे सॉन्ग आप कैसे सीखते हैं? म्यूज़िक टीचर से। इसके अलावा आपके डांस टीचर है, दैट इज़ जिमी सर, तो इनके माध्यम से आप अलग अलग तरह के डांस सीखते हैं, है ना। आप क्लासिकल डांस भी सीखते हैं, आप वेस्टर्न डांस भी सीखते हैं, आप हिप हॉप सीखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है स्कूल में, है ना। और द लास्ट क्लास वी आर हैविंग अ प्ले ग्राउंड। इट इज़ नॉट अ क्लास, इट इज़ अ एक्टिविटी वेयर हम अपने मन को खोल के अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। सो वी प्ले द डिफरेंट गेम्स इन आवर प्ले ग्राउंड। ये बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, इज़न्ट इट? आपको ये पसंद है, आपको खेलना कितना पसंद है हमें पता है नहीं। आप हमेशा एक लीजर पीरियड मांगते रहते हैं मैम से, मैम प्लीज़ काइंडली गिव मी अ लीजर पीरियड सो दैट वी कैन हैव अ गेम। ओके। तो हर वीकेंड के दिन में दौरान आप लोग मांगते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं। सो आई नो दैट हाउ मच यू चेरिश द गेम ना। सो इट इज़, ये तो बच्चों का हक है, उसे खेलना ही चाहिए। एंड दूसरी बात क्या है कि ये स्कूल सिर्फ एक लोगों से नहीं चलती है, ये एक संस्था है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आती है और अलग अलग तरह तरह के लोग इसको चलाते हैं। जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, आपके लाइब्रेरियन हो गए, आपके क्लर्क हो गए, आपके पियोन हो गए, गार्डनर हो गए, है ना, और भी बस अंकल हो गए, बस ड्राइवर अंकल हो गए, आपके गेट कीपर हो गए। ये सभी लोग आपको सर्विस देते हैं, तो इनके प्रति हमें क्या दिखाना चाहिए? रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, काइंड हार्टेडनेस दिखाना है। कभी कितने बच्चे इनको लंच ऑफर करते हैं, तो अच्छी बात है,
इससे क्या होता है, आप सोशल बनते हैं, आपको देना लेना सीखते हैं। सो इस तरह से हम लोग अपने स्कूल में ढेर सारी बातें सीखते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट वी कैन से दैट द स्कूल इज अ गोल्डन लाइफ। इसी लाइफ में हम अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ ना, ये सभी के साथ हम घुल मिल के एक दुनिया का एक नया चैप्टर सीखने को मिलता है। ओके, सो आशा करते हैं ये चैप्टर आपके लिए अच्छा रहे और आप भी बहुत सारी चीज़ सीखे हैं आर्यन से और सीखते ही रहें, ऐसा ये आशा करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज व्हाट नीड्स टू बी एक्सप्लेन। ओके, so thank you and please prepare for your first term and be safe and sound with your family members. Thank you very much.